हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम आपको प्लस 1 में आगे कर रहे हैं चैप्टर 12। कौन सा? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ओके, चैप्टर 11 और हो गया था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट दिस आल्सो 2 वीडियोज हो गए, 2 लेक्चर हो गए ऑन दिस चैप्टर 12, limits and derivative. Introduction about the limit, what is the meaning of the limit, derivative का general meaning, and about the limit, one special formula in the trigonometry, that proof of that sin x upon divided by x, sin x divided by x, limit x tends to 0 is equal to 1. If direct putting x 0, so 0 divided by 0 is coming. If 0 upon 0 position anywhere in the mathematics, so we can't say about this till now. Okay, what is the value of 0 upon 0? We can't say in mathematics. This invention 0 divided by 0 till now not finalized. So not calculated till now. So about 0 upon 0, if anywhere putting this limit, yani domain element is putting and 0 upon 0 is coming, so we can't say about the limit exists or limit does not exist. We can't finalize. So for like that questions where limit, evaluate the limit any function and 0 upon 0 position is coming in rational function, जैसे rational function है, numerator also any polynomial, denominator also any polynomial, px upon qx or gx, we can say anything, but denominator polynomial should not be 0, then this is the rational function. We know about the definition of the rational function. So like that, you know that everything done in that chapter 1 and 2. Okay, then now here this forward, अब क्या करना है जब 0.0 है तो कोई स्पेशल फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने बताया अभी, या आपका कोई फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले से। कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, तो which we know about the any polynomial or any function or any question, algebraic knowledge we know, algebraic identity we know, so simplify by that which we know, mathematical tools, use that. Okay, so now this question number 8 to 12 we have to do, up to 7 done in last lecture number 2. Today is the lecture number 3, third lecture आज on this chapter 12. Okay, now limit x tends to 3, question 8 NCERT book. Limit x tends to 3, x approaching to 3, इसको बोलते हैं x tends to 3 और x approaching to the 3. तो x पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो ये रेशनल फंक्शन है। इसमें अगर डायरेक्ट पुट करते हैं x की वैल्यू 3, तो 3 पावर 4 81 बनता है, माइनस 81 0 बन गया, और यहाँ पर 3 पुट किया, 3 स्क्वायर 9 9 2 18 and 3 5 15 and 3 15 and 3 minus 19 and plus 19 0, तो 0.0. So we have to say in the solution of this, okay, it is at x is equal to 3 not calculated, इसको नॉट कैलकुलेटेड का मतलब अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी जहां 0.0 बनती है। मीन्स हेयर क्या बना, दिस इंप्लाइज 0.0, तब ये पोजीशन बनती है, तो वी कांट से 0.0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.0, वी कांट से। सो हमें सिंप्लीफाई करना है,
So simplify the function limit x tends to 3 as it is and solve the function. Simplify तो फैक्टर हो जाएंगे इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो a is x square. Direct I am writing because x power 4 means x square का whole square and 81 means 9 square 9 9 जा 81 तो x square plus 9 a plus b हो गया and a minus b x square minus 9 फिर इसके दोबारा फिर फैक्टर हो जाएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई एंड यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 3 2 जा 6 अब 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम -5 हो ठीक है और इट इज -6 ओके तो -6 में इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 into 1 अब इसमें नेगेटिव कौन सा लेना ये बिकॉज -5 चाहिए सम इनका तो प्रोडक्ट इनकी क्या बन जाएगी प्रोडक्ट -6 है एंड सम इनका -5 सम कितना है -5 तो दिस वी नो इन 10th क्लास यू हैव डन splitting the middle term and then factorize so then 2x square then -5x -6 plus 1 okay तो plus 1x -6x and this -3 as it is okay then simplify then इसके और भी फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर -9 के -9 9 में 3 स्क्वायर तो a स्क्वायर - b स्क्वायर अगेन so then limit as it is x tends to 3 and then x square plus 9 into x plus 3 दो फैक्टर बन गए इसके एंड x -3 into x -3 okay and divide by ये फैक्टर कॉमन 2x कॉमन सॉरी only x common then 2x plus 1 then here what common 3 -3 common then 3 2 जा 6 and माइनस कॉमन तो प्लस के 2x एंड -3 है तो +1 बचेगा डन क्लियर ओके सो नाउ सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर में फैक्टर हो गया x -3 एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा तो ये न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस 9 वन फैक्टर सेकेंड फैक्टर x plus 3 and third factor x minus 3 okay and divide by this factor x minus 3 one factor second factor 2x plus 1 अब 9 एक फैक्टर कैंसिल हो गया ये x -3 तो क्या बन गया हमारा ये लिमिट एज इट इज चलती रहेगी x टेंड्स टू 3 limit this now forward what left here numerator this and denominator this now you check here if you are putting x value 3 so it is not 0.0 so now take LHS and RHS so LHS sorry left hand limit LHT लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या पुट करना है इसमें x के प्लेस पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस h तो a इज 3 तो 3 माइनस h
तो x यहाँ h टेंस टू डायरेक्ट पुटिंग h टेंस टू 0 एंड पुटिंग x वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए 3 माइनस h, ये लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है। तो क्या होगा इसमें x के प्लेस पर 3 प्लस h, तो 3 प्लस h होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट इंटू x प्लस 3, x की वैल्यू 3 माइनस h प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, तो 2 इंटू x, x इज 3 माइनस h and plus 1, 2x plus 1. Done. Now simplify. Okay. और h पुटिंग 0, डायरेक्ट 0 पुट कर दो h, तो ये 0 पुट किया तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, put h value is equal to 0 in this. Now 3 plus 3 6, 6 minus 0 means 6, तो into 6 into 6 divide by 2 3 जा 6, 6 only minus 0, तो 3 minus 0 3, 3 2 जा 6, 6 plus 1 7. Then simplify. Okay, it is not divisible by 7 numerator, तो multiply only. 108 divided by 7. Okay, this is your left hand limit. Right hand limit, right hand limit, right hand limit के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एंड x के प्लेस पर क्या पुट करना है, राइट हैंड के लिए a प्लस h, a इज 3 प्लस h, x की वैल्यू ये पुट करनी राइट हैंड के लिए, तो x के प्लेस पर फंक्शन में पुट करो 3 प्लस h, 3 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट इंटू x प्लस 3, तो x इज 3 प्लस h प्लस 3, x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, तो 2 इंटू x, x इज 3 प्लस h, 2 into x, x means 3 plus h and plus 1. Put in the function this x value 3 plus h for the right hand. Then simplify, put h is equal to 0. So 3 plus 0 whole square 9, 9 plus 9 18 into h 0 put किया 3 plus 3 6 into 6 divide by h 0, तो 2 3 जा 6, 6 plus 1 7. Then 108 upon 7. ये सेकेंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू एंड देन थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड राइट हैंड हो गया एंड थर्ड फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, तो हमने 3 पुट किया, तो यहाँ 3 पुट किया, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 इंटू 3 प्लस 3 6, 3 पुट किया, x वैल्यू इज 3, then this will be 7, then 108 upon
7. Done. So then right hand, left hand and the value both are equal. So from first, second and third implies that left hand limit x tends to 3 negative of fx is equal to right hand limit means x tends to 3 ऊपर positive and for fx is equal to f of 3 is equal to 108 upon 7. So limit exists. Answer. So limit x tends to 3 of question x power 4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3 is equal 108 upon 7. Answer. क्लियर? तो लाइक दिस वी शुड डू. यहाँ एग्जिस्टेंस हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, ऑल थ्री आर इक्वल, देन लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन 9. व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 हियर, ax plus b upon cx plus 1. So here a and b and c are any real number. So in the form of a, b, c answer we have to give a, b, c. Only x tends to 0 है. अब 0 put करो तो 0 plus b, 0 into that plus 1. तो calculated this. So left hand and right hand we have to solve. Now put here for the left hand क्या put किया हमने, x की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट a 0 0 माइनस h, ये पुट किया हमने लेफ्ट हैंड के लिए. ओके, तो ये हमने पुट कर दिया x की वैल्यू. तो इसमें x क्या हो गया आपका 0 माइनस h, तो a इंटू 0 माइनस h प्लस b डिवाइड बाई c इंटू x इज 0 माइनस h एंड प्लस 1. सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, सॉल्व करके h की वैल्यू 0 भर दिया हमने, तो 0 भर दिया तो a इंटू 0 0 हो गया, तो प्लस b ओनली 0 प्लस b b एंड ये c 0 माइनस 0 यानी 0, c इंटू 0 0, तो प्लस 1, तो अपॉन 1, b अपॉन 1 इज इक्वल टू b. आंसर बन गया फर्स्ट इज b. ओके, सेकेंड राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंस टू 0 के राइट हैंड, 0 के पॉजिटिव साइड, दिस इन फंक्शन fx. ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और स्लाइटली लेफ्ट. राइट का मतलब हो गया x के प्लेस पर क्या पुट करना है, x की वैल्यू a 0 एंड प्लस h राइट हैंड में, h टेंस टू 0. ओके, सो पुट किया x की वैल्यू, तो a इंटू x इज 0 प्लस h, a इंटू x प्लस b डिवाइड बाय c इंटू x मीन्स 0 प्लस h. ओके,
and +1. क्लियर? दिस फंक्शन में पुट कर दिया x के प्लेस पर 0 + h, देन सॉल्व किया, क्या निकला है? दिस इंप्लाइज h 0 पुट कर दिया, 0 + 0 0 0 इंटू a 0 + b, तो प्लस b 0 + b अपॉन 0 + 1 इज इक्वल टू b। ये भी आपका b आ गया, दूसरा नंबर भी, राइट हैंड लिमिट भी। और नाउ फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू डायरेक्ट 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो पुटिंग एयर x की वैल्यू 0, तो a इंटू 0, a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0, x की वैल्यू 0 प्लस 1, then this 0 plus b, 0 plus 1 is 1, then is equal to b. So this implies from first, second and third we get left hand limit of the function. Left hand limit means x tends to 0 left bar is equal right hand limit means x tends to 0 plus of fx of the question is equal to function value at x is equal to 0. All these are equal to b. Okay? Answer. So limit exists this, and that is b answer. Direct we can say, forward we can write. Okay? Now next question. Similarly, हाँ बेटा, next question, question number 10. Limit z tends to 1, z power 1/3 minus 1/z power 1/6 minus 1. अब इसमें डायरेक्ट आप z की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो 1 power 1/3 1, 1 minus 1 0, and 1 power 1/6 also 1, 1 minus 1 0. So it is 0.0. It is in it is at x, x नहीं, यहाँ पर z है, it is at z is equal to 1. It is at z is equal to 1, 0/0 form. Okay, so simplify. Okay, simplify fx. अब simplify function, तो limit as it is, z tends to 1. अब सिंप्लीफाई z पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं? z पावर 1/6 होल स्क्वायर, z पावर 1/3 को ये लिख सकते हैं, माइनस 1 को 1 स्क्वायर अपॉन z पावर 1/6
-1। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दो फैक्टर क्या बन गए, ए इज 1 जेड पावर 1/6 ए प्लस बी इज 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इज जेड पावर 1/6 ए माइनस बी इज 1। दो फैक्टर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज जेड पावर 1/6 -1। अब सेम फैक्टर कैंसिल आउट, लिमिट as it is z tends to 1. So this cancel factor and now put the value. We can calculate direct and फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड डायरेक्ट कैलकुलेट, z इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, या पहले लेफ्ट हैंड ही निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट z टेंस टू 1, लेफ्ट मीन्स 1 बार ऑफ fx, x नहीं है एफ जेड है, यहाँ एफ जेड इज इक्वल लिमिट जेड एच टेंस टू एच टेंस टू 0 एंड जेड की वैल्यू क्या पुट करनी है, लेफ्ट हैंड ऑफ 1 माइनस एच, पुटिंग दिस वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए, तो x के z के प्लेस पर, तो z मीन्स 1 माइनस एच, z मीन्स 1 माइनस एच होल पावर 1/6 प्लस 1। ठीक है, तो ये इंप्लाइज क्या बन गया, अब h टेंस टू 0 पुट कर दिया तो 1 माइनस 0 1, तो 1 पावर 1/6 देन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मीनिंग x approaching to the right of the 1 means 1 plus positive side of this fz, ये z वेरिएबल में फंक्शन है। सो दिस वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ कि z की वैल्यू राइट हैंड में 1 के राइट हैंड में 1 प्लस h ये पुट करनी है हमें। ठीक है, तो पुट कर दिया इसमें फंक्शन में z पावर 1/6, z मीन्स 1 प्लस h पावर 1/6 प्लस 1। ओके, तो इसमें सॉल्व किया, h की वैल्यू 0 पुट किया, तो h 0 पुट करने पर क्या बन गया, 1 प्लस 0 1, 1 पावर 1/6 देन 1 प्लस 1 is equal to also 2. Okay, and function value at z is equal to 1। अब z की वैल्यू 1 पुट किया, तो यहां पर z की वैल्यू 1 पुट किया, 1 पावर 1/6, 1 पावर 1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये 2, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स z टेंस टू 1 बार लेफ्ट हैंड। ओके, z now this of function in z variable is equal to
right hand limit means z tends to right hand to 1 plus h, 1 positive of fz is equal to f of 1, z is 1, is equal to 2. Answer. Done. So next question similarly we can do. Okay. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a b c एनी रियल नंबर बट सच दैट a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0. इनका सम 0 नहीं है तीनों का, ऐसे रियल नंबर है. ओके. नाउ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू 1 के लेफ्ट में 1 बार. इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 के लेफ्ट में 1 माइनस एच, ये हमें पुट करनी है. ओके. तो फंक्शन में पुट किया है तो क्या बन गया फंक्शन हमारा, ये a इंटू एक्स स्क्वायर. तो a इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स 1 माइनस एच, एक्स की वैल्यू एंड प्लस c होल डिवाइड बाय सी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वी एक्स यानी b इंटू 1 माइनस एच प्लस c प्लस a. ओके. तो ये वैल्यू पुट करी तो क्या बन गया, h की वैल्यू. अब यहाँ h टेंस टू 0 होगा. क्या होगा यहाँ, h टेंस टू 0. लिमिट h टेंस टू 0. तब 0 पुट किया h, तो 1 माइनस 0 मीन्स 1 होल स्क्वायर 1. तो a 1 स्क्वायर यानी a. सिमिलरली h पुट किया 0, 1 माइनस 0 इज 1, b इंटू 1 इज b प्लस c डिवाइड बाय h 0. तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1. तो देन c प्लस b इंटू 1 माइनस 0 1. तो b इंटू 1 इज b एंड प्लस a. तो a प्लस b प्लस c not this same cancel, then is equal to 1. Same number divided by the same number then 1. So this is 1. Right hand limit also we have to calculate. तो right hand limit का meaning x tends to 1 के positive side of function in variable x. This implies, अब ये बन गया h की फॉर्म में. क्या पुट करना हमें, x की वैल्यू राइट हैंड टू 1 मीन्स 1 प्लस h we have to put. तो put this value here, then h tends to 0. h क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर यानी अप्रोचिंग टू 0 इन राइट हैंड पॉजिटिव. एंड देन पुटिंग x वैल्यू 1 प्लस h. तो a इंटू एक्स स्क्वायर. तो 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स. x मीन्स 1 प्लस h प्लस c डिवाइड बाय c इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स
1 plus h whole square, okay, plus b into x. X means 1 plus h and plus a, okay. Then this implies put h की value 0, तो 1 plus 0, 1 into a, तो 1 square is 1, the 1 into a is a plus ये b, h वैल्यू 0 पुट कर दिया एंड सॉल्व, ओके। यहाँ भी h 0 पुट किया तो c प्लस b into 1 b and plus a, same thing cancel, then is equal to 1. Second is third, function value at x is equal to 1. So function value at x is equal to 1, put here 1 square 1, then a into 1 square एक बार पुट करके दिखा दो प्लस b, और डायरेक्ट वी कैन राइट, डायरेक्ट लिखो 1 square is 1, then a into 1 a plus b into 1 b plus c upon x, 1 square 1, so c into 1 c, b into 1 b and plus a. These are same, cancel, then is equal to 1. So this implies left hand limit means x tends to 1 bar is equal to right hand limit means x tends to 1 positive side is equal function value at x is equal to 1 is equal to 1 from all. Done. Answer. So limit value is equal to 1. Done. Next question. Last question. Okay. Yes, beta. Now here question number 12. Next question. Limit x tends to -2, 1 upon x plus 1 upon 2 divided by x plus 2. अब इसमें आप x की वैल्यू -2 डायरेक्ट पुट करो, तो 1 upon -2 मीन्स -1 upon 2 plus 1 upon 2 0 upon -2 plus 2 0 upon 0. So first simplify, okay, simplify. Because value at x is equal to -2 implies 0 divided by 0. So simplify, okay. तो simplify किया, क्या बना, limit x approaching to -2. अब एल्शियम लिया न्यूमरेटर में, एल्शियम क्या बन गया 2x, x एंड 2 का एल्शियम 2x, तो x से डिवाइड ओनली 2, 2 बन गया 2 प्लस x होल डिवाइड बाय x plus 2 multiply by 1 upon x plus 2. डिवाइड बाई x plus 2, तो मल्टीप्लाई 1 upon x plus 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा x plus 2 का 1 upon दिस, तो ये कैंसिल हो गया एक फैक्टर, ओके। सो ये क्या बन गया आपका फंक्शन के लिमिट, क्वेश्चन बन गया कि x टेंस टू -2 ऑफ 1 upon 2x, 1 upon 2x, ये क्वेश्चन बन गया. सो लेफ्ट हैंड
अब लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू लेफ्ट हैंड -2 बार नेगेटिव साइड, क्या बनेगा ये? दिस इज इक्वल टू फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? -2 -h, तो -2 -h, तो 1/2 इंटू -2 -h लेफ्ट ऑफ -2, ठीक है। h की वैल्यू 0 पुट किया तो 1/2 इंटू -2 -0, तो -2, दिस इज -1/4, डन, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड हो गई। अब राइट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू -2 के पॉजिटिव साइड, दिस मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 एंड x के प्लेस पर क्या पुट करना है इस फंक्शन में? 1/2x, x के प्लेस पर 2 -2 के राइट साइड, तो -2 प्लस h and h put equal to 0, then 0 -2 plus 0 -2, -2 2 जा 4, then -1/4, ये भी सेम आ गया, ठीक है। एंड थर्ड आल्सो फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2, 2 इंटू x is -2, then this is also -1/4, 2 2 जा 4, all three same, okay. So implies that left hand limit means x tends to -2 bar is equal to right hand limit means x tends to -2 के plus is equal to function value at x is equal to -2 is equal to -1/4, answer, done, okay. Now you like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact और उन पेरेंट्स को भेजिए जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल एंड देन वॉच द वीडियो विच यू वांट, 10th क्लास 11th 12th सबके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर, ओके। थैंक यू एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके।